Welcome to my YouTube channel Study Point 11. And today this would be a very important topic for everyone, whether it may be a student who studies an academic such as who studies in schools from class 4th to 12th onwards. This is the important topic for them, not only for also for those who tries to qualify an exam in JKSSB or in SSC or CGL or any other competitive exam, who are going to take participation. You find that this is the topic tense. Tense means time. First of all, I would like to tell you that about the tense, everything. What tense mean? आज हमारा टॉपिक जो होगा ये टेंस होगा. टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस बोला गया ये एक लेटिन वर्ड से लिया गया है, टेम्पस, विच मीन्स टाइम, जिसका मकसद होता है, जिसका माना होता है टाइम. या ये बोला गया ये एक ओल्ड देयर आर सम ग्रामेरियंस, जो ग्रामेरियन कुछ हैं वो कहते हैं कि इसको ओल्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, टेंस, TNS. इस वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, तो इसका मतलब भी टाइम होता है. इन वन वे और इन अदर वे कि हम इसको कह सकते हैं टेंस मीन्स टाइम, इसीलिए हर एक की ज़ुबान पर होता है टेंस मीन्स टाइम. फाइन, ओके. Now, how we define it? We can define it. Tense is derived from the Latin word tempus, which means time. Or according to some grammarian, they said tense is derived from an old French word, tense, which means time. So it's clear to us that tense means time. But we don't know how much time it comes. It comes a bulk of time or a huge period of a time. And after that, we can also define like this. Tense is a form of verb. It may be defined like this, that which indicates time and state of an action. Fine. So tense is a form of verb which is used to indicate time and state of an action. Now I will tell you how it indicates time and state of an action by examples. Like and it is said that it has just three kinds. And I will give an example and you will clear that आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी किस्में हैं. अगर तीन किस्में हैं, एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा. फाइन, आई विल राइट इट फॉर यू सो दैट इट विल बी सिंप्लीफाइड टू यू, ताकि आपके लिए आसान हो जाए. पहला पास्ट टेंस बोला गया, हम एग्जाम्पल देंगे किसी की. ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था. सो इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड, विच वाज डन इन अ पास्ट. एक काम जिसको मुकम्मल किया गया, जो हुई थी. लाइक हम यहाँ पे बोला गया ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था. सो इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच वाज completed, which was done in the past. That's why it's called a past tense. So and it comes in the tenses, and it is a kind of tense. Second, present tense. How? We will come to know by an example. हम example से देखेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे he goes to school. He goes to school. वो स्कूल जाता है. Fine. So it indicates an action which is done in the present, or action which is going on, which is still continuing, which is moving. So in one way or another way, an action is in the present moment, an action in the present time. So that's why it's called present tense. इसीलिए अगर ये present time में है, मौजूदा दौर में, हाल में चल रही है, तो इसको हम कहते हैं present tense according to grammar. So this one is past tense, this one is present tense. Now there is third now, future tense. Future, how will example? See, he will go to school. वो स्कूल जाएगा. So it is in the future, an action which will happen in the future, an action which will going to happen in the future. Action जो है ये होने वाली है, अभी तो नहीं हुई. It is yet to come. It is based on the ideas, it is based on the imagination. ये imagination पे base करता है, ये ideas पे base करता है. So अभी ये हुई नहीं है. So first one is past tense, an action which was done. Second, a present tense, an action which is done in the present moment. That's why it's called a present tense. फिर तीसरा future tense. क्यों? क्योंकि an action which is going to happen, जो होने वाली है, और which will happen in the future, जो future में होगी. And it is based on the ideas. ये ideas पे base है. Suppose मैं कहूँगा I will go to श्रीनगर. I shall go to श्रीनगर. I shall meet my friend. मैं अपने दोस्त को, मुझे चाहिए कि मैं अपने दोस्त को मिलूं. I will write a letter, or I shall write a letter. So an action which is going to happen in the future, an action which will happen in the future, that action represents in the future tense. So these are the three kinds of tenses. So tense has three kinds: past tense, present tense and future tense. Hope कि आपको समझ आया हुआ होगा. Now फर्दर हम इस पे समझते हैं कि ये कैसे इंडिकेट करता है, टेंस मीन्स टाइम कैसे इंडिकेट करता है, और स्टेट ऑफ एक्शन कैसे करता है. सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये चीज ही वेंट टू स्कूल, पास्ट टेंस दिया, तो दिस इज द टाइम, state of a time. It indicates the function of a time. This is the function of time. यानी कि
इसमें जो है इसमें फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि कौन से टाइम में हुई बात। ही वेंट, वो किस वक्त गया था स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, टाइम आया, फंक्शन है पास्ट की, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। प्रेजेंट है, ही विल गो टू स्कूल। फ्यूचर है, तो इंडिकेट क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए टाइम। यहाँ पे हमें बताते हैं कि टाइम है, फाइन, टाइम में क्या हो रहा है। नाउ वी विल सी स्टेट ऑफ एन एक्शन। सपोज आई एम गिवन एग्जांपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, आपको समझना है इसको। एग्जांपल इसमें आप देखिए, सपोज मैं देखूंगा आई राइट लेटर्स रेगुलरली। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई राइट लेटर्स, मैं चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, बट रेगुलरली, रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द प्रेजेंट टेंस, पहले ये प्रेजेंट टेंस में आई राइट लेटर्स, मैं चिट्ठियाँ लिखता हूँ रेगुलरली। फिर ये साथ साथ में दिखाता है हैबिचुअल एक्शन भी। तो मकसद इट मीन इट इंडिकेट, डिक्लेयर्स समथिंग, इट स्टेट्स समथिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो दिस इज द स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ ए बीइंग, ये एक होने की वजह कि मैं व्हाट आई एम डूइंग। Fine. I say he rises early in the morning. So it indicated he rises early in the morning daily. He rises early in the morning regularly. It indicates first something is happening, something status in the present. And it is another side, it shows an habitual action. मगर पहले ये बात भी, ये भी state पे कुछ कर रहा है, जैसे कि he rises early in the morning, वो सुबह सवेरे जागता है, तो हमें इससे पता चला वो क्या कर रहा है, state of an action। ठीक है। फिर अब अलग बात है रेगुलरली की है, हैबिचुअल भी एक्शन दिखाता है साथ साथ। सो पहले में टेंस, फंक्शन ऑफ टेंस या टेंस दिखाता है, दूसरे में स्टेट, एक्शन ऑफ स्टेट दिखाता है। फाइन, एक्शन ऑफ स्टेट, फाइन। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगेन रिवाइज करते हैं यहाँ तक। व्हाट डज टेंस मीन? टेंस इज derived from the Latin word tempus, which means time, or according to some grammarian they said that tense is derived from old French word which means tennis, which means time. Or it may be different like this. It's a form of verb that which is used to indicate, which is used to show time and state of an action. State of an action. By a few examples I have shown you. For example, यहाँ पे मैं कुछ और भी example दे सकता हूँ. Like he played a game, he wrote a letter, he sang a song. तो ये जो actions है, these actions had completed. These actions were completed in the past. So it represented that something had happened in the past. This is why we called it a past tense, because actions had happened in the past time. क्योंकि action जो है ये complete हुई है किस में? Past time में, इसलिए हम इसको कहते हैं past tense. Then the second type of tense is present tense. Present in tense indicates an action which is going on, which is done recently, or which is done. Okay, like he said, I sing a song, I play a game, I write a letter, we sing a song, we recite an holy verse of Holy Quran, we read a book, I teach a story, I teach you a story. These are the statements. ये जो statements होते हैं इनको हम present tense में कहते हैं. Fine, because action is done in the present moment. इसीलिए हम इनको कहते हैं क्या? Present time. Fine, present time. Then there is future tense. ये भी बोला है कि this is based on idea, this is based on imagination, an action which will happen in the future, जो होने वाली होगी, तो हम इसको कहते हैं future tense. Like मैं बोलूँगा he will go to school, she will write a letter, she will speak in English, definitely. Like this, I just use some words, some statement so that it will be understood to you. Fine, okay. अब हम इसके further देखते हैं. Each tense has four subordinate types. हर एक के चार फर्दर टाइप्स है, एक्सप्रेशंस है, लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फाइन. देन फ्यूचर टेंस के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. आज हम आगे से पढ़ेंगे इस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट. फाइन. सो आई विल रब इट. होप इट इज अंडरस्टूड टू यू. मुझे लगता होगा कि ये आपके लिए आप इसको पसंद करेंगे. ओके. ओके, अब इसमें देखते हैं पहला वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसके और भी नाम है. इट आल्सो कॉल प्रेजेंट सिंपल, और वी कॉल इट प्रेजेंट
we call is a present simple. हम इसको कहते हैं present, पहला नाम present indefinite. This is the subordinate type of present tense. ये subordinate type है present tense का, और इसमें हम इसके मुख्तलिफ नाम है, present simple या simple present भी कहते हैं. And what does it mean? इसमें जो present simple या present indefinite, an action which is इसमें क्या होता है at the present, an action which is I mean say which will happen, which is going on. ये present tense सारा यही है, which is going on. Fine. एक हम इसमें uses भी देखते हैं. पहले first of all, I would love to tell you about the present indefinite, how to make the sentences in the present indefinite. तो इसके लिए the first and foremost thing you need to know about its format or formation, means how to form a sentence, how to make a sentence. You need to know about subject. आपको subject पता होना चाहिए, subject होता क्या है, आगे इस पे भी बात होगी. Simply हमें कहूँगा subject मतलब वो होता है जिसके मुतालिक हम बात करें, चाहे वो thing है या person है. Fine. Subject means to whom we talk about, whether it may be a thing or it may be a person, whether it may in the form of singular or in the form of plural. चाहे ये singular है, singular means वाहिद, plural means two or more than two, दो या दो से ज्यादा, जमा जिसको हम कहते हैं. Fine. तो ये subject हमें पता होना चाहिए, because it will help us to make us a sentence, because subject पे ही सब कुछ होता है. Like मैं कहूँगा मेरे लिए सब्जेक्ट कोई पर्सन है, अब देखते हैं वो पर्सन क्या करता है, तो मुझे पता होना चाहिए सब्जेक्ट होता क्या है. फाइन. ओके. सब्जेक्ट हमें चाहिए, हमें इसमें वर्ब चाहिए, मगर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये इससे भी आगे पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ से लेते हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं. देयर इज ए वी कैन से रीजन टू एवरी वर्ड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज. Okay, then there is an object. ये object भी हमें चाहिए. This is the first one, first thing that we need to know, we must know, so that it helps us to make a sentence. यहाँ पे हम देखते हैं कैसे sentence बनाते हैं. एक देखते हैं कि sentence पहला. For example, मैं लिखूँगा Aman writes a letter. ठीक है. Fine. Aman writes a letter. Now we will see. Aman is a subject. Fine. And verb writes is a verb. But first form of verb, okay, and a letter is an object or it's a complement. इसको हम complement भी कह सकते हैं. Fine. अब इस subject to whom we talk about, we are talking about Aman. What Aman does? Aman क्या कर रहा है? Aman writes a letter. Fine. अच्छा, this is the first form of verb which we use in the present simple. ये हम present indefinite या present simple में first form में इस्तेमाल करते हैं. आपको पहले ही format दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप बात करेंगे, जब अगर present indefinite में बात करने, आगे इसके function कहाँ पे करना है इस्तेमाल, क्या क्या इस्तेमाल है इसका. ठीक है. First form of verb, then object. Object means जिस पे बात खत्म होती है. Aman writes. You don't know what Aman writes. When I say a letter, it means an action which stops on a letter. इसको हम कहते हैं transitive verb इस sentence को. ठीक है. Transitive कहूँगा. जब हम verb पढ़ेंगे, verb के kinds भी देखेंगे. वहाँ पे एक ये भी है transitive, intransitive. Transitive verb क्या होता है? And जिसमें एक्शन पास होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट. अमान राइट्स, अमान क्या करता है? एक्शन डज नॉट पास व्हेन वी राइट अप टू लाइक दिस. जब हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे ना अमान राइट्स, तो यहाँ पे एक्शन पास ही नहीं होती है. देखेंगे एक्शन आप कहाँ से पास होती है. अमान राइट्स ए लेटर एंड एक्शन पास ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक्शन पास होती है ऑब्जेक्ट पर, तो इसका ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं. यहाँ तक आया समझ. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें एक्शन पास ही नहीं होती है. सपोज मैं कहूँगा शी वर्क्स, वो काम करती है, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क शी डज, वो क्या कौन सा काम करती है. फाइन. तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि या ऑब्जेक्ट भी हम इसको कहते हैं. दिस इज ट्रांजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बिकॉज इन एक्शन पासेस ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि इस पे बात खत्म होती है. फाइन. यहाँ तक ये याद रखना है. अच्छा, अब मुझे और भी सेंटेंस बनाने चाहिए. नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊँ. इंट्रोगेटिव आई कॉन्ट मेक, आई कैन मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस. बहुत सारे मैं सब्जेक्ट्स लूँगा, अदर वर्ब्स लूँगा, बना सकता हूँ. लाइक अगर मुझे नेगेटिव बनाना, मैं क्या कर सकता हूँ? आई कॉन्ट मेक. यहाँ तक उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा. फाइन. अब मुझे और सेंटेंसेस बनाने के लिए आई नीड स्पेशल वर्ब्स, आई नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स, आई नीड हेल्पिंग वर्ब्स. वो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, इसको मैं लिखूंगा शॉर्टकट में HV, या इसको मैं AV भी लिख सकता हूँ. AV मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब. इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब है, डज, डू. डज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? विद सब्जेक्ट सिंगुलर. जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट मीन्स टू होम वी टॉक, लाइक अमान. अगर मैंने अमान इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगर मुझे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इवन कि पॉजिटिव भी मैं लगा सकता हूँ, इसके साथ में फिर मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए डज के साथ. फाइन. फिर उसके साथ डू. डू जो है ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है. फाइन. मीन्स प्लूरल होना चाहिए सब्जेक्ट उसके साथ. बट आई जो है ये एक्सेप्शनल केस. इवन ये सिंगुलर है, इसके साथ डज आना चाहिए, बट इट्स एन एक्सेप्शनल केस. याद रखना इस बात को. आई इज एन एक्सेप्शनल केस. एक्सेप्शनल केस मीन्स विच ब्रेक्स डाउन द रूल्स एंड लॉज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इट डज नॉट एक्सेप्ट. समझ आ रही बात?
ये हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है रूल्स, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस, या इसको हम कहते हैं ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी है, क्योंकि ये कभी कभार सिंगुलर ऑक्सिलरीज भी कैरी करता है, वो ऑक्सिलरीज जिनके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, देखेंगे आगे वो भी व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, व्हेन वी मूव अहेड, जब हम आगे चलेंगे इसके बाद। अच्छा, मैंने क्या बोला, आज जो है ये डज के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इस्तेमाल ये एक्सेप्शनल केस है विच ब्रेक्स डाउन द रूल्स एंड लॉज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई यूज इट विद डू हियर, ये डू के साथ इस्तेमाल होता है। फाइन। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल, ये दोनों हमें क्या करते हैं, पहला ये इट हेल्प्स a main verb to it helps main verb, and second it also helps us to make other sentences like positive, negative, interrogative, negative। पहले हम बनाते हैं 2-3 सेंटेंस ताकि आपको समझ आ जाए कैसे। मिसाल मैंने अमान ही लिया, चलो अमान ही लेंगे, अब मैंने इस्तेमाल करना है ऑक्सिलरी वर्ब। अमान इज अ सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वाहिद, एक है, ठीक है। अब देखते हैं अमान डज, फाइन, क्योंकि मैंने बोला अमान डज जो है इट इज अ हेल्पिंग वर्ब विच इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ तक समझ? ओके। अमान डज राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अमान डज राइट ए लेटर। अच्छा, मैंने पॉजिटिव फिर से बनाया जो मैंने ऊपर। अच्छा, मैंने क्या बोला था, ये मुझे वहां पर इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जहां पे मैं नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लाइक अमान डज नॉट राइट ए लेटर। समझ? ओके, फुल स्टॉप लास्ट में, अमान डज नॉट राइट ए लेटर, या डज अमान राइट ए लेटर, फिर वॉकअप इंट्रोगेशन लास्ट में, बिकॉज इज क्वेश्चन, क्या अमान चिट्ठी लिखता है? डजंट अमान राइट ए लेटर, क्या अमान चिट्ठी नहीं लिखता है? तो मैं ये अमान बार बार जो है इसको मैं काटूंगा, अब मैं ही बोलूंगा या शी बोलूंगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नाउन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्रोनाउन, ये वैल्यू है, दिस इज द यूज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन समझ आ रहा है मुझे, व्हाई शुड आई यूज अगेन एंड अगेन नाउन्स? इट इज बेटर टू स्किप to say the name of someone, it's better to use he। बेहतर होगा ना कि मैं pronoun ही इस्तेमाल करूँ। pronoun is a word which replaces nouns, फाइन, विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो इस्तेमाल होता है नाउन की जगह। फाइन। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पे मैंने अब इस्तेमाल किया सिंगुलर के साथ, ही डज राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, डजंट ही राइट ए लेटर। ऐसे शी डज प्ले ए गेम, शी डज नॉट प्ले ए गेम, डज शी प्ले ए गेम, डजंट शी प्ले ए गेम। वैसे हम प्लूरल के साथ डू इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वी डू ईट फूड, वी डोंट ईट फूड, डू वी ईट फूड, डोंट वी ईट फूड। या ऐसे कोई और वर्ब लेते, दे do speak English, they don't speak English, do they speak English, don't they speak English। तो ये मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम does do। अच्छा, और एक यूज है इस ऑक्सिलरी वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? when we use the auxiliary verbs or helping verb in the sentences, it make a sentence emphatic, असर होता है। I mean stressful sentences बन जाते हैं इससे, like why should I say I do write a letter, because I want make an emphatic on this statement, क्योंकि मैं इस सेंटेंस पे जोर देना चाहता हूँ। I want makes it should be stressful sentence। I can write say I write a letter, but मैं कहता हूँ I do write a letter। फाइन। तो ये, या अमान डज राइट ए लेटर, इवन कि मैं कह सकता अमान राइट्स ए लेटर, मगर मैं क्यों कह रहा अमान डज राइट ए लेटर? बिकॉज इट फर्स्ट हेल्प्स अस टू मेक इफेक्टिव सेंटेंस, सेकंड इट हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें भी मेन वर्ब को हेल्प करता है कंप्लीट करने में। फाइन हुआ। तो ये फॉर्मेट है सेंटेंस बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट को सिंपल कहें। या अब इसके यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फाइन, ओके। होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया हुआ होगा यहाँ तक। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज फंक्शन हम देखते हैं, यूज इसका देखते हैं। पहली बात, इसको हम हैबिचुअल्स, जो भी आपके हैबिचुअल या हम डेली रूटीन में, जब आप कोई बातें करते हैं डेली रूटीन में, आपने अपनी डेली रूटीन बोलें, मतलब आपकी सुबह से शाम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, विच थिंग्स हेल्प्स यू, विच थिंग्स बिकम्स एन एज फॉर यू टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन सी चीज़ें आपको एज देगी कि इंग्लिश सीखने में। पहला, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, आप क्या जानते हैं अपने बारे में। लाइक आपको अपना नाम बताना है, अपनी रेजिस्टेंस, कहाँ आप रहते हैं,
आपकी प्रोफेशन स्टूडेंट है, कुछ क्या जॉब क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, फाइन, या आपकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स जिसको आप हॉबीज़ कहते हैं, या आपको बताना है अपना इंटरेस्ट बताना, एम है आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, इवन कि अपनी फैमिली भी फैमिली बैकग्राउंड यू कैन कंसिडर इन इट, यू कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट यूर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ भी कह सकते हैं। बट जो मैंने ये चीज़ें दीज आर इंपॉर्टेंट, पहले जो आपको ये पता है पहले, नाउ ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लाइक वेल आई माई सेल्फ मुश्ताक अहमद, आई एम फ्रॉम Jammu and Kashmir, and as far as my education qualification background is concerned, I have done masters in public administration. ऐसे फिर इसके बाद अपनी qualification education family background कितने इतने it consists 5 family members, 7 family members, 9 family, 3 family members, ऐसे whatsoever. तो जो भी आपकी मतलब फैमिली में आता है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपको स्पीक करना है इंग्लिश में। इट विल यू नो गिव यू अ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि ये ईजी है। आप अपने बारे में क्या जानते हैं, यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, दूसरा डेली रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं। लाइक ऑब्वियसली सुबह सवेरे सब उठते हैं नींद से, बेड से, तो सीधे जाते हैं वॉशरूम, वहाँ वज़ू बनाते हैं या नहाते हैं, फिर कोई नमाज के लिए, कोई कुछ और करता है। अपनी डेली रूटीन सुबह से लेकर शाम तक किचन में चाय, ब्रेकफास्ट, व्हाट्सएवर यू डू, जो आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसको हम कहते हैं डेली रूटीन, या आप उसको हम कहते हैं हैबिचुअली जो आप करते हैं, आदतन जो आप करते हैं, रोज़ाना आप जो करते हैं। यू नीड टू लर्न दैट, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इन इंग्लिश। आपको पता ही है, यू फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जागता हूँ, देन आई गो टू वॉशरूम, I abluate my face or I bath myself, then I go for pray, I come back and I देखो ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, it's used to speak in present indefinite. Present indefinite means यहाँ पे फॉर्मेट याद रखना है, सब्जेक्ट लिया, ओके, अपने बारे में बात कर रहा हूँ या किसी और के बारे में बात करनी है। ऑब्वियसली जो भी बंदा अपनी डेली रूटीन के बारे में कहेगा, सो वो तो अपनी अपना आई यूज़ करेगा। तो जब इसको हैबिचुअल एक्शन होगी, डेली रूटीन होगा, आई इस्तेमाल होगा, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी, लाइक आई गेट अप, गेट फर्स्ट, गेट, गॉट, गेटिंग, fine, I get up early in the morning, then I go, went, gone, going, then I go to bathroom or washroom, I ablute my face, abluting, fine. Okay, sorry for this. Okay, आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं।